All right. So in last class we have seen. All right. In last class if we revise, okay. In last class revision, if we do here, in last class we have seen the circular flow. We have seen the circular flow of output and income. All right. Where we have seen that how expenditure of one sector becomes the income of others. All right. We have also we have also done the measurement of national income. All right. We have seen the measurement of national income. Okay. Whereby we have seen there are three methods. One is income method, second is production method, we also call it as value added method. Right. We also call it as value added method. Third, we have seen the expenditure method. Okay. We have seen the expenditure method. Okay. We have also studied about the classification of economic activities. Okay, where we have done two types of classification: primary, secondary, tertiary, and quaternary, and agriculture, manufacturing, and services. Right. So now, okay, now we are moving ahead. And we will we will study in this class. We will study about, okay, outline of this class. If we see here what we will discuss today, first I would like to let you know. All right. So outline of this class, we will see here that what are the items that included that are included what are the items that are included in calculating national income, as well as those items which are excluded items as well. We will see over here. We will also see here that what are the problems that come into the fore while calculating the national income. Calculating problems in calculating national income. Okay. Problem in calculating national income. We will also see that what were the revision that was done in the year of 2015. Revision done in the year of 2015 over here. Okay. Revision in the year of 2015 in national income accounting. So there were some changes in the 2015 that took place. We will also find that. Okay. We will also discuss one good concept over here, that is called as the basic price concept. Okay. Basic price. So we have done the market price, we have done the factor price, okay, factor cost. Okay. So now we will discuss here today what are the basic prices. Okay. Similarly, we will also discuss over here, the controversies. Okay. The controversies related to new methodology
in revision of national income accounting in the year 2015. Okay, so that is the thing. Okay, so and in the last I will give a brief history of national income accounting. Okay, why I am giving it in the last? Why? Because it is not that much important. That is why just you should be aware of that what was the history of national income accounting. That is why I will tell it in the last. Okay, so here I will begin in the items that are included in the calculating national income are those items which are excluded in calculating national income. Okay, so I will begin one by one over here. Okay, I will begin one by one over here. Okay, so first thing is first I will begin with the items excluded. That means those items which are not included right, not included in counting of national income. I hope you understand. Okay, not included in counting national income. You can say it in GDP or in GNP or whatever. Okay, whatever method is adopted in calculating national income, these items are not included. So what are those items? First one is intermediate goods. Okay, intermediate goods, they are not included. Okay, to avoid डबल काउंटिंग. ओके, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड जब फाइनल गुड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड नहीं करते हैं, सो दैट कि डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जा सके. सेकेंड पार्ट इज ट्रांसफर पेमेंट्स. वी डू नॉट इंक्लूड द transfer payments. They are unilateral payment. Okay, unilateral payment made that is made without any consideration. What are they? For example, if you are giving gift to somebody, that comes under the transfer payments, and transfer payments are not included in the calculation of the national income. Okay, so here why it is not included? Why it is not included? Because recipient, okay, because the recipient is not obliged to pay back. Okay, also example includes grants. Okay, that is the unilateral payment. Okay, that is paid by somebody to somebody, but the recipient is not obliged to pay back. Donations. Okay, if any hospital or any educational institutes getting donation from somebody, that will not be included in the national income. Similarly, unemployment allowances. Okay, so these allowances are not part of the national income. Okay, for example, old age pensions. Okay, here
retirement pension is not retirement pension. Retirement pensions are retirement pensions. Okay, they are included in the old age pension is different thing. Retirement pensions are different thing. Okay, so retirement pensions are included, but old age pensions are not included. Okay, similarly, scholarship that is not included. Okay, prize money, prize money, prize money will not be included in the counting of national income. Similarly, winning from lottery, okay, from lottery or quiz contest, okay, so they are also not included, but they could be taxed. Okay, so taxation and national income both are two different things. They are taxed but not included in national income. That you have to keep in mind. Okay, that you have to keep in mind. Okay, so they are the transfer payments. Okay, I have written here, they are the transfer payments. Okay, now third point here, third point is the sale and purchase of old सेकेंड हैंड गुड्स. अगर आप कार सेकेंड हैंड लेते हो, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. क्यों? बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड वंस. एक बार पहले ही उसको इंक्लूड कर लिया गया है ना. जब वो नई कार थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसके प्रोडक्शन को ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है. अभी वो कितनी भी बार खरीदी और बेची जाए, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है. ब्लैक मनी जनरली that is not included. Okay, that is also called as untouched money, Fifth point, capital gains. Okay, capital gains that is not included as well. capital gains का मतलब ये हुआ कि सपोज एक लैंड है ना, लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है. ओके, तो वैल्यू ऑफ हियर, सपोज फॉर एग्जांपल लैंड सेलिंग से अगर कोई इनकम आ रही है, तो वैल्यू ऑफ लैंड इज इंक्लूडेड. ओके, वैल्यू ऑफ लैंड इज इंक्लूडेड, बट increased value are not included. ठीक है, इंक्रीज वैल्यू और नॉट इंक्लूडेड. तो ओरिजिनल लैंड की जो वैल्यू है ना, अगर आप लैंड को सेल करते हैं, तो एक बार सेल करने के बाद उसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, है ना, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, दैट इज द कैपिटल गेन्स, है ना. बहुत बड़ी मात्रा में गेन होता है, बट उसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, वी इंक्लूड ओनली वंस. ठीक है. 6, वैल्यू ऑफ household services are not included. Household services are not included. ओके, जैसे एग्जाम्पल, अगर हाउस वाइफ काम करती है ना, हाउस वाइफ डेली रूटीन सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड. ओके, वो भी तो काम कर रही है, शी इज ऑल्सो एडिंग द वैल्यू, बट दैट इज नॉट बीइंग काउंटेड. दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक of calculating national income accounting. Okay, so that is the thing. So these are the items which are not included in the national income. Okay, now we will write here. So what are those items which are included basically? Okay, that you need to understand with respect to the UPSC context. Okay, so I will write here the items
items included. Okay, what are those items which are included in the GDP or national income? तो मैंने पहले बताया है वैल्यू एडिशन, राइट? वैल्यू एडेड सर्विसेज या वैल्यू एडेड गुड्स, जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है रॉ मटेरियल पर, वैल्यू एडिशन, ओके, ओवर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पे जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है वो सारे आइटम्स को हम इंक्लूड करेंगे. सेकंड पार्ट, वैल्यू ऑफ value of self consumed goods. Okay, हालांकि very difficult, this is very difficult to understand and calculate, but that value of self consumed goods are also included. Okay, very good. Self consumed goods, for example, if a farmer is there, okay, and he has got 10 quintal of wheat, okay, so suppose out of 10 he keeps 3 quintal for himself, self consumption, and 7 quintal he sells in the market. Okay, so now entire quality, okay, entire wheat will be counted in the national income. Okay, entire quantity will be counted in the national income. Doesn't matter whether he is selling or not, वो सारा का सारा जो भी ना उसका हार्वेस्ट किया है व्हीट को, सब कुछ सारा व्हीट वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में. ओके, वी आल्सो इंक्लूड estimated or imputed rent of self occupied property. ओके, जो भी हमारी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है उसको भी हम एस्टिमेट करते हैं. ओके, रेंट अगर हम ले रहे हैं तो हम उसको इंक्लूड करते हैं. तो ये 3 चीजें हम बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, इसको ध्यान देना है. ओके, सो नेक्स्ट डिस्कशन वुड बी our next discussion would be here next discussion is what are the problems, okay, problems in calculating national income. So we'll discuss over here, okay, problem in calculating national income. What are the problems that come in calculating national income? Okay, problems in calculating national income. Okay, so generally there are 2 types of problems. Okay, generally if you see here the problems. Okay, so generally there are 2 types of problems. Okay, here I will write here. Okay, so first one is the practical problem. Or what? Statistical problem, right? Okay, practical problem or statistical problem. Second one is theoretical problem. Okay, theoretical problem that comes in calculating the national income, or that is called as the conceptual problem. All right, so I will discuss over here. The first one is the practical problem. What are the practical problems? First
Okay, I will write here first. What are the problem? That is, first one is the non-reliable data. Okay, generally data is based on the surveys, and what if the data is non-reliable? That is the one thing. Second thing, that unorganized sector data. ठीक है, इनका डेटा कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है ना, कलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, कलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है ना, कोई अगर चाय की दुकान खोला है और वहां से नेशनल इनकम या वहां से उसको इनकम गेन हो रही है, तो उसकी आय क्या है इसको कैलकुलेट कर पाना पूरे कंट्रीज में बहुत डिफिकल्ट है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा तो हमारे पास जनरेट होता है ना, ऑफिसेज में, बट चाय की दुकान का कोई ऑफिशियल एस्टिमेट नहीं है, या ऐसे ही ना जाने कितने ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड वन इज देर आर सम नॉन मार्केट एक्टिविटीज, non-market activities, non-market activities also includes, I already given the example of wheat of the farmer. Okay, non-market activities that is generally for self consumption purpose. अब उन्होंने कितना wheat है ना सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा हुआ है, nobody knows. Okay, self consumption purpose, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, है ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये प्रॉब्लम आती है ना। सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई फार्मर कितना फूड ग्रेन स्टोर करके रखा है, नोबडी नोज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. ओके, all right. Next one is lack of occupational specialization. ओके, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये हुआ, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि देयर आर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम. ओके, वो एक उनका ऑक्यूपेशन है नहीं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम. देयर आर सो मेनी वर्कर्स इन द कंट्री, they are working on different places to gain the income, to run their households, right? Multiple income sources. Okay, और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, विदाउट रिकॉर्ड. ओके, वो चाय की दुकान भी चला रहे हैं, है ना, वो ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है. ऑलराइट, एंड इन द लास्ट ब्लैक मनी. ओके, ब्लैक मनी का कोई रिकॉर्ड मिल नहीं पाता है. ओके, सो दीज आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम दैट statistician generally face while calculating the national income. Okay, so non reliable data, इनका कलेक्शन हुआ है ना, राइट पर्सन है कि नहीं. अनऑर्गेनाइज सेक्टर डेटा, नॉन मार्केट एक्टिविटीज, लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन एंड ब्लैक मनी, दे आर द practical problem generally being faced. Second comes the theoretical problem. What are the theoretical problems that comes into the fore? Here. Okay, so theoretical problem generally what it means? It means lack of consensus, lack of consensus among economist ऑफ द कंट्री. कोई कहता है एक मेथड सही है, दूसरा कहता है ये कैलकुलेशन ही रॉन्ग प्रिंसिपल पे किया गया है. ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज हियर द यूज ऑफ statistical टेक्नोलॉजी या टेक्निक. ओके, ठीक है, देयर आर
डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक, यहाँ जानने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। किसके लिए? सपोज आपको डिप्रिशिएशन करना है ना, डिप्रिशिएशन की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो देयर आर मल्टीपल मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल, है ना, स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज, है ना, through which the depreciation is calculated, but they give different values. depreciation का estimation करना है, for example हमने लिखा यहाँ पे, है ना, value of inventories stock, कितना माल पड़ा हुआ है इन्वेंट्रीज में, और उसकी वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये चीज़, ठीक है। सेकंड है ना, कि डेटा का सोर्स क्या है, सिलेक्शन ऑफ डेटा सोर्स, है ना, कहाँ से जो है डेटा को पिक किया जाए कि ऑथेंटिक कैलकुलेशन उसकी हो सके। अभी तो हमारे पास क्या हो रहा है, MCA 21, ओके, MCA 21 का यूज हो रहा है, ओके। दिस इज ह्यूज डेटा सोर्स। MCA 21 क्या है? इट इज ए रिपोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी कि जो भी कंपनीज का डेटा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के MCA 21 डेटाबेस में मौजूद रहते हैं। दिस इज द ह्यूज डिपॉजिटरी, एक्चुअली दिस इज द ह्यूज डेटा सोर्स, ह्यूज डेटा कलेक्शन यहाँ पे रहता है, ठीक है, MCA 21, ओके। इसके पहले, है ना, बिफोर MCA 21 क्या यूज करते थे? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ASI का यूज करता था। ASI, दैट इज एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, इसका यूज होता था फॉर डेटा, ओके, बाय CSO। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कौन सा जो है ना, डेटा सोर्स ऑथेंटिक है? MCA 21 का करंट यूज हो रहा है, कोई कहता है नहीं ASI वाला ज्यादा अच्छा था, ओके। तो यहाँ पे एक डिबेट बनी रहती है, ये एक तरीके की थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, राइट। थर्ड पॉइंट हियर कि देर आर वेरियस कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, हियर आई एम राइटिंग यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ NI, ओके। फॉर एग्जाम्पल, कभी, है ना, फैक्टर कॉस्ट पे होता है, कभी मार्केट प्राइस पे कोई कहता है, अभी आजकल चल रहा है बेसिक प्राइस पे कैलकुलेशन होता है ना। बेसिक प्राइस 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया, बेसिक प्राइसेस, ऑलराइट। तो कुछ जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइसेस या बेसिक प्राइसेस, हम इसमें से कौन सा ज़्यादा ऑथेंटिक है या कौन सा यूज करें, वो हम जो है इसमें एक डिबेट रहता है बिटवीन द इकोनॉमिस्ट, राइट। तो एक तरीके की थियोरेटिकल प्रॉब्लम है। सो वी हैव सीन हियर द प्रॉब्लम्स दैट कम्स in calculating national income. The first one is the practical problem, second one is the theoretical problem, all right. So like that, okay. So we have finished two things over here. We have finished so far. What we have done, we have done the 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 items excluded in the national income accounting. We have also done the item included in the national income accounting. We have done the problems that comes in calculating national income, okay. Now here we'll discuss about, okay, we'll discuss about here, we will discuss about here, okay, we will discuss over here, we will discuss the revision in national income accounting, okay. We will discuss here the revision in national income accounting,
दैट मीन्स व्हाट वेयर द चेंजेस, है ना, क्या चेंज किया गया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग की स्ट्रेटजी में 2015 में। ये हुआ है, ये सारी कहानी 2015 में हुई है। ओके, दैट यू हैव टू मेक इन योर माइंड। ओके, तो क्या चेंज किया गया है, ओके, ये हमें देखना है। ऑलराइट, सो विल मूव अहेड। तो पहला हम बताएंगे इसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, है ना। पहला इन्होंने किया है, बेस ईयर में चेंज किया है, बेस ईयर। ओके, बेस ईयर चेंज्ड फ्रॉम 2004-5 से लेके 2005 से चेंज करके इन्होंने किया है टू 2011-12। ठीक है, they have changed the base year. Okay, currently again it has been changed, now it is 2022-23. Okay, on the recommendation of Goldar committee, okay, so 2015 में इन्होंने रिवीजन किया है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, बेस ईयर को पहले चेंज किया। ओके, बेस ईयर वाज चेंज्ड। ओके, then what they have done, I'm writing here, economic growth rate to be depicted on the basis of GDP-MP, okay, at constant prices instead of GDP at factor cost at constant prices। है ना, वेरी सिंपल। तो पहले क्या होता था कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेजर करते थे, अब हमने क्या किया है, जिसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे मेजर करते हैं। ओके, नाउ दिस सिस्टम इज रिलेवेंट इंस्टेड ऑफ जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। ओके, सो दो चेंजेस ये हो गए ना। थर्ड चेंजेस क्या किया है इन्होंने, हमने बताया इन्होंने न्यू डेटा सोर्सेस, है ना, कि जो डेटा होगा उनके सोर्सेज को इन्होंने चेंज किया। ओके, इन्होंने चेंज किया न्यू डेटा सोर्सेज में। क्या किया इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 का डेटा लेंगे, नंबर 1। ये लेंगे डेटा ऑफ लोकल बॉडीज, ओके, डेटा ऑफ लोकल बॉडीज, राइट। ये लेंगे डेटा फ्रॉम रेगुलेटर्स, डिफरेंट ऑफ रेगुलेटर्स, लाइक एग्जाम्पल RBI, ओके, SEBI। ओके, अर्लियर MCA 21 का यूज नहीं करते थे, है ना। अर्लियर ASI, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का डेटा हम यूज करते थे। ठीक है जी, ये है ना, MCA 21, है ना, दैट वाज द इनिशिएटिव इन द 2006 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऑलराइट, सो ये हो गया। तो अभी न्यू डेटा सोर्सेज का यूज हो रहा है। अभी क्वेश्चन है कि वेदर इट इज डिजायरेबल और नॉट, वेदर इट इज रिलेवेंट और नॉट। ओके, वेदर इट इज डिजायरेबल, इफ अगर न्यू डेटा सोर्सेज की एंट्री हुई है ना, रिलेवेंट है कि नहीं है ये, तो बिल्कुल रिलेवेंट है, यस, इट इज डिजायरेबल। ओके, बिकॉज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ह्यूज डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर रिक्वायर्ड। ओके, तो उसकी प्रोसेसिंग अच्छी होगी, ज़्यादा डेटा रहेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। ओके, बिल्कुल सही है, राइट, बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल। ओके, तो ये हो गया। सेकेंडली अगर हम बात करें
सेकेंडली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा, ओके, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा जो है इन्होंने इंक्लूड किया है ना, इन्होंने इंक्लूड किया है एनएसएसओ के सर्वे से, ओके, एनएसएसओ के सर्वे से, ओके। तो क्यों डिजायरेबल है, मैंने बताया कि जो भी है ना, अगर ज़्यादा डेटा हमारे पास होगा तो उसकी वैल्यू जो है ऑथेंटिक होगी। दिस इज वेरी मच डिजायरेबल, वेरी मच डिजायरेबल। व्हाई? बिकॉज अगर सैंपल साइज जो है बढ़ेगा, इफ सैंपल साइज इज इंक्रीजिंग, ओके, सैंपल साइज इंक्रीजिंग ऑफ डेटा, तो इसकी ऑथेंटिसिटी भी इंक्रीज होगी, ओके। सो इट वाज वेरी मच डिजायर्ड एंड इट वाज डन प्रॉपर्ली, ओके। All right, okay. So here, so they have adopted the new data sources, okay. So here I am writing again, here I am writing again here, okay, just a second, I'm writing here, I will write over here, okay. I will write as per I am giving the updates, okay, as per economic survey 2025-2026, that is the recent one, recent economic survey. What this is telling, okay, क्या कह रहा है ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, इन्होंने कहा है कि अगेन इन्होंने कहा कि वी आर इनकॉर्पोरेटिंग न्यू डेटा sources to increase authenticity, okay. They have again, all right, again they have added few other data sources to increase authenticity. किसके लिए बच्चों, किसके लिए? अभी तो हमने बताया आपको कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो डेटा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो डेटा है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड sector, very difficult to identify, okay, very difficult to identify. So now government is doing their own efforts, okay. तो इन्होंने कहा है कि एक सर्वे है जिसको हम बोलेंगे, एक सर्वे है जिसको हम बोलेंगे ASISSE, ओके, इकोनॉमिक सर्वे में है ये, ठीक है, इसको बोलेंगे एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस, ओके, सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये डेटा का नाम है ना, डेटा सोर्स। ये इन्होंने कहा है कि 2026 में हम लॉन्च करेंगे इसको, ओके, दैट विल बिगिन टेकिंग सर्वेज फ्रॉम 26, ओके, यहाँ पे ये बिगिन होगा, ठीक है, 2026 में ये लॉन्च करेंगे इसको, ओके। तो फिर इन्होंने लिखा है ना, फिर इन्होंने कहा है कि, है ना, आई एम राइटिंग द सेम लाइन व्हाट इज देयर इन द इकोनॉमिक सर्वे 2026। इन्होंने लिखा कि दिस complements existing survey that is called as ASUSE, okay, this will complement existing survey, okay, its name is annual survey of unincorporated सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्वे पहले ही किया जा रहा था, अभी इन्होंने नया सर्वे लॉन्च किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे यूपीएससी, राइट, कि नया क्या जो है इनिशिएटिव है। तो पहला इनिशिएटिव तो ये हो गया, है ना। दूसरा इनिशिएटिव
survey has talked about, second initiative the survey has talked about, and the name of the survey is AIDS. Okay, AIDS. It will be called as the All India Debt and Instrument Services. एक डेटा ये भी है ना, एक डेटा इन्होंने ये भी किया है, राइट। अब ये काम क्या करेगा, व्हाट इट विल डू, ओके, क्या काम करेगा ये, हियर आई एम राइटिंग, इट विल नो, क्या काम करेगा, हाउस होल्ड एसेट ओनरशिप, क्या है, कितना आपके पास एसेट है वो बताएगा, और आपके पास कितना ऋण है ना, डेट कितना है आपके पास, इंडेटनेस बताएगा, अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज, है ना, ये भी रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों होगा। तो एक सर्वे इन्होंने, है ना, इसके लिए क्या, किस लिए लॉन्च किया है इसको लॉन्च किया है टू अंडरस्टैंड क्रेडिट मार्केट का मतलब कि आपने कितना, है ना, क्रेडिट का मतलब लोन होगा, यहाँ पे आपके पास कितना एसेट है और आपके पास कितना लोन है। तीसरा सर्वे इन्होंने लिखा है, इट इज कॉल्ड एज द सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, ठीक है, ये है ना, ऑल दी सर्वे विल soon be taking place, soon be conducted across the India, right? Okay, ये किसके लिए है, on rural agricultural household, ठीक है। सो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, they have tried to complement the survey, they have tried to complement the data source by incorporating 3 different surveys, है ना, ये तीनों सर्वे 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लॉन्च हो जाएंगे, और ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में फर्दर हेल्प करेंगे, बस यही आपको जानना है, ठीक है। सो न्यू डेटा सोर्सेज MCA 21 ये 2015 में किया गया, तो हमने आपको अपडेट दिया है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में क्या हुआ है नया, ठीक है जी। ऑल राइट, सो 3 points I have mentioned over here, 3 points I have mentioned over here. Now next point, okay, we have discussed that what was the revision in national income accounting. नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बेस ईयर चेंज किया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को भी बताया गया कि हम अब जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, न्यू डेटा सोर्सेज लाए गए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हियर आई विल राइट हियर, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज दैट अब इन्होंने क्या किया कि सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट को इनकॉर्पोरेट किया, ग्रोथ रेट टू बी एस्टिमेटेड, sector wise growth rate to be estimated on the basis of GVA at basic prices, ओके, नया कॉन्सेप्ट है, इन्होंने लाया ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइसेस, ओके, ग्रॉस वैल्यू एडिशन at basic prices, ओके, ये है कहानी। तो अभी तक जो भी है ना जीडीपी कैलकुलेट हो रही थी, जीडीपी फॉर होल इकोनॉमी, ओके, फॉर ऑल सेक्टर्स टुगेदर, ओके, ऑल सेक्टर्स मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, या आप एग्रीकल्चरल, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज,
अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब ये लाएंगे जीडीपी। जीडीपी तो है ही है हमारे पास, ठीक है। अब कहें, इन्होंने कहा कि सबके लिए जीवीए अलग होगा, इसके लिए अलग जीवीए होगा, इसके लिए अलग जीवीए होगा, और इसके लिए अलग जीवीए होगा, ठीक है, राइट। इन, है ना, इस तरीके से इन्होंने 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 8 सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड किया, 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया, और इन्होंने 8 तरीके की जीवीए को अब कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। ओके, सो पहले तो जीडीपी क्या करते थे, सारे सेक्टर्स के लिए करते थे, है ना, सारे सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम सेक्टोरल वाइज कैलकुलेशन करेंगे, सेक्टोरल वाइज कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया सेक्टर वाइज कैलकुलेशन। तो इन्होंने क्या किया कि 8 सेक्टर में, 8 सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड किया, और 8 सारे सेक्टर्स के लिए अलग अलग, है ना, जीवीए इन्होंने बना दिया। अब अगर हम जीडीपी की बात करें, यानी कि पूरे नेशनल की जीडीपी को, तो ये जितने भी जीवीए हैं, है ना, 8 सेक्टर के जीवीए को इन्होंने, है ना, 8 सेक्टर की जीवीए जितने भी है उसको सबको अगर मिला लो और उसको ऐड कर दो, तो दैट वी विल कॉल इट जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ जीवीए बेसिक प्राइसेस, है ना, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, यहाँ पे लिखेंगे जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, बेसिक प्राइसेस, बेसिक प्राइसेस, ओके। ये है, तो हमारा डिस्कशन यहाँ पे हो गया कि क्या क्या रिवीजन किया गया, रिवीजन इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, बेस ईयर चेंज किया गया, है ना, न्यू डेटा सीरीज को लाया गया, और फिर ये कॉन्सेप्ट आया गया जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, ओके, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस टू कैलकुलेट द सेक्टोरल वाइज ग्रोथ रेट, ओके, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की क्या ग्रोथ है, उसको सबको मिला के जीडीपी हम उसको, या नेशनल इनकम उसको हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे वहां से, ऑलराइट। Okay, now here, so our next discussion, as per plan, our next discussion would be, हमारा दूसरा डिस्कशन होगा बेसिक प्राइसेस पे, है ना। हमने बताया कि जीवीए क्या है ना, दैट इज द सम ऑफ ऑल द सेक्टर, द ग्रोथ ऑफ सम ऑफ ऑल सेक्टर, ओके। तो बेसिक प्राइसेस क्या है, इसकी भी हम बात करेंगे, है ना, व्हाट आर द बेसिक प्राइसेस ओवर हियर। Our next discussion is what are the basic prices, all right? Okay, so basic price स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो सपोज एक फर्म है, फर्म में गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, एंड दिस इज फर्म ओनर। सो किसी सामान के प्रोडक्शन में या किसी गुड के प्रोडक्शन में हमें क्या क्या, फर्म ओनर को क्या क्या कॉस्ट आती है, ओके, है ना, कॉस्ट क्या क्या आती है इसके प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन ऑफ गुड कंटेन्स सम कॉस्ट। द फर्स्ट वन वी हैव सीन, ऑलरेडी वी हैव सीन द फैक्टर कॉस्ट, ओके, फैक्टर कॉस्ट में है लैंड, लेबर, कैपिटल and entrepreneurship, okay. Apart from factor cost, there is one cost, right, another cost that incurred on the farm owner, that is called as the production tax, okay. प्रोडक्शन टैक्स, यानी कि अगर प्रोडक्शन कर रहा है किसी गुड की, तो फर्म ओनर को ये प्रोडक्शन टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। इट विल पेड टू गवर्नमेंट, paid to government, okay, that is paid to government, all right। तो ये कहानी है बेसिकली। तो अभी तक बिफोर 2015, बिफोर आई विल राइट हियर, बिफोर 2015 we were calculating GDP at factor cost, okay, by incurring the factor cost of this particular प्रोडक्ट। सो सारे प्रोडक्ट, है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्ट जो है बन रहे हैं, सारे प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करके हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकाल लेते थे, बट हम प्रोडक्शन टैक्स को छोड़ देते थे, ठीक है।
प्रोडक्शन टैक्स को हम एक्सक्लूड करते थे बिफोर 2015, ऑलराइट। आफ्टर 2015 we have included after 2015 we have included factor cost, all right. We also include production taxes, okay, production taxes, and these two together is called as the basic prices, okay. यानी कि बेसिक प्राइसेस में क्या क्या आता है? बेसिक प्राइसेस में आ रहा है आपका फैक्टर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन टैक्सेस, ओके, बेसिक प्राइसेस हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। सो बेसिक प्राइसेस का डिस्कशन यहाँ पे हम कर रहे थे। बेसिक प्राइसेस में हमने कहा कि ये प्रोडक्शन टैक्स ओके को इंक्लूड करता है। सो बेसिक प्राइसेस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन, or we also call it as net production taxes, okay, because government also provides subsidy, so net production taxes would be better word, okay. Factor cost, so basic prices equals to just a second. So basic prices equals to factor cost plus net production taxes. So क्या चेंज होता है? चेंज क्या हो रहा है? ओके, चेंज ये हो रहा है चेंज आफ्टर 2015 we have calculated GVA. We have done, instead of factor cost we have moved towards basic prices, right? So अगर हम कैलकुलेट करें GVA एट बेसिक प्राइसेस, ओके, तो हमने आपको पहले ही बताया था GVA क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। 8 सेक्टर्स का अगर GVA हम कंबाइन कर देते हैं, ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज द ग्रॉस GVA, ओके, दैट विल बी इक्वल टू GDP एट नेशनल लेवल। ये हमने आपको पहले ही बताया था। तो GVA एट बेसिक प्राइस का क्या मतलब हुआ? GVA एट बेसिक प्राइस का मतलब ये हुआ, अब हमारा आ रहा है GVA at factor cost plus GVA at factor cost plus net production tax, okay, net production tax. This is the formula, simple. So only one change is there, rather than factor cost, we are now calculating the basic prices, okay, and basic prices includes both factor cost as well as the net production taxes. That's it, simple, okay. So can we calculate, मैंने बताया कि GDP है ना, सारे GVA को मिला के GVA बताया गया है ना। तो अगर हम GDP की वैल्यू निकालें, GDP एट मार्केट प्राइस, ओके, सो GDP एट, तो इसमें GVA BP में हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और जुड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट taxes, okay. So these two formula you have to remember. Only thing is production tax को हम include कर रहे हैं post 2015 से हम जो है प्रोडक्शन टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम यहाँ बता देंगे मार्केट प्राइस कैसे आ गया, ओके। तो अगर है ना, हमारा मार्केट प्राइस कैसे हो गया आपको समझना है। तो हमने बताया था पहले कि मार्केट प्राइस पहले क्या था, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस था। अब हमने फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ प्रोडक्शन टैक्स को और जोड़ दिया। यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स को याद रखिएगा, प्रोडक्ट टैक्स नहीं है, प्रोडक्शन टैक्स है,
So this is market price. Okay, market price. So GDP एट और ना, और इस फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स को हम मिला के बोलेंगे बेसिक प्राइसेस. ओके, तो GDPMP इज इक्वल्स टू GVABP और प्लस नेट डायरेक्ट टैक्सेस. GVABP सारे 8 सेक्टर्स जितने भी हमारे हैं उनको सबको मिला के GVABP होगा, ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्राइस हो गया. सो बेसिक प्राइस में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर दे रहे हैं फैक्टर कॉस्ट के साथ. ऑलराइट, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया जो है बेसिक प्राइसेस पे. आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम, और हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा एज पर प्लान, हमने बताया था आपको एज पर प्लान we will discuss about here issues. All right, issues or controversies related to new methodology. न्यू मेथोडोलॉजी मतलब जो 2015 में जो चेंज हुआ था, हम उसकी बात कर रहे हैं. चेंज इन 2015 के बाद, है ना, क्या इश्यूज जनरेट हुए, है ना, इश्यूज क्या जनरेट हुए हैं, है ना. तो पहला इशू क्या हुआ, है ना, पहला इशू है देयर वेयर सिग्निफिकेंट अपवर्ड रिवीजन इन ग्रोथ रेट. ओके, तो अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें 2013-14 फाइनेंशियल ईयर 2014 की 2014, तो अगर हम ओल्ड मेथड से जाएं, ओल्ड मेथड जिसमें बेस ईयर 2004-5 था, है ना, उसके हिसाब से हमारी जो ग्रोथ आई है वो है 4.7%, और न्यू मेथोडोलॉजी से हमारी ग्रोथ आई है 6.9, है ना, 2011-12 का बेस ईयर था. तो ठीक है, तो 6.9%, तो सिग्निफिकेंट अपवर्ड रिवीजन, यानी कि ग्रोथ रेट को, है ना, स्टेटिस्टिकली इंप्रूव कर दिया गया, है ना. एक्चुअल में ओल्ड मेथड से उतनी ग्रोथ नहीं थी. ठीक है, ऑलराइट. सेकंड एक कंसर्न और बताया गया, है ना, दूसरा बताया गया, एक डिमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना. देयर वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन in the year of 2016. ओके, तो क्वार्टर थ्री ऑफ 2016-17 ग्रोथ रेट आई है 7%, है ना, 7%. ओके, एंड फिर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ईयर 2016 में जो ग्रोथ आई है वो है 7.1%. ऑलराइट, यानी कि ड्यूरिंग और बिफोर डिमोनेटाइजेशन जितनी ग्रोथ थी उतनी ही ग्रोथ बताई गई न्यू मेथोडोलॉजी से पूरे साल की. और ये लगता है कि यहाँ पे है ना, इट वाज ऐसा माना गया कि इट इज नॉट करेक्ट. ओके, यहाँ पे डेटा को जो है डेटा में रिशफलिंग हुई है, और ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो, है ना, पहले ग्रोथ थी डिमोनेटाइजेशन पहले, वही डिमोनेटाइजेशन के बाद की ग्रोथ हो. ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट हुई थी. राइट. थर्ड डिबेट जो की गई, जिसे हम बोलते हैं GDP बैक सीरीज डेटा, GDP बैक सीरीज डेटा. राइट, GDP बैक सीरीज डेटा में वही, है ना, ओल्ड एंड न्यू मेथोडोलॉजी. तो यहाँ पे एक डिस्कशन आता है, सिंपल सा डिस्कशन है. ओके, यहाँ पे जनरली हम कहें अगर वही दो चेंजेस,
बेस ईयर चेंज कर दिया गया था, 2011-12 कर दिया गया था, ठीक है। और न्यू मेथड्स है ना, जैसे GVA का इंट्रोडक्शन हुआ था, बेसिक प्राइसेस का इंट्रोडक्शन हुआ था, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट क्लेम्ड इन 2018, ओके 2018 इन्होंने क्या क्लेम किया है, देखिए जरा। इन्होंने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट 1 आई, फिर यूपीए गवर्नमेंट 2 आई, फिर उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट आई, है ना, एनडीए गवर्नमेंट आती है ना। तो यूपीए गवर्नमेंट का जो पहला टेन्योर था 2004 से 2009 था, यूपीए 2 का टेन्योर था 2009 से 2014, ठीक है। और अभी तक यानी कि 2018 तक, क्योंकि 18 में क्लेम किया है ना, 2014 से 18 के बीच में। तो इन्होंने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट ने कहा था कि इनकी ग्रोथ इस टाइम पीरियड के दौरान 8.1% है। इन्होंने कहा था कि 2009 से 14 के बीच में इनकी ग्रोथ 7.5% है, ओके। ओल्ड मेथड से ना, ओल्ड मेथड से इनकी ग्रोथ है 8.1 ओवरऑल एवरेज। अगर दोनों का है ना, दोनों का एवरेज करीब करीब 7.5% के ऊपर है, राइट। तो एनडीए गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि अगर हम न्यू मेथडोलॉजी को है ना, न्यू मेथडोलॉजी को अगर हम यूज करते हैं तो यूपीए की गवर्नमेंट में जो एवरेज था वो 6.7% का ही ग्रोथ हुआ है ना, दोनों टेन्योर में 6.7 का ही जीडीपी ग्रोथ हुई है। और हमने विद इन 4 ईयर्स, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट ने विद इन 4 ईयर्स 7.4% की ग्रोथ को अचीव किया हुआ है, राइट। सो दे आर faster growth, they claimed that the faster growth in NDA government within 4 years, which यूपीए गवर्नमेंट यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट फेल्ड टू अचीव, ओके। ये हुआ है। तो इसका जो है हमने कहा कि कंट्रोवर्सी हुई एक तरीके की, है ना, कि जो नई गवर्नमेंट आती है उन्होंने अपनी ग्रोथ रेट को न्यू मेथडोलॉजी के तहत 7.4% बताया है, ओके। और अपने पुराने यानी प्रीवियस गवर्नमेंट की ग्रोथ को 6.7% बताया है। तो एक तरीके की कंट्रोवर्सी यहाँ पे रिजल्ट होती है, राइट, ओके। तो एक तरीके का इशू है ना, एक तरीके की कंट्रोवर्सी रफ्ट होती है यहाँ पे। एक ओके, अब हम देखेंगे। तो हमने 3 इश्यूज देखे, है ना। पहला इशू देखा यहाँ पे सिग्निफिकेंट अपवर्ड डिवीजन इन ग्रोथ रेट, है ना, कि कैसे जो है ओल्ड मेथड से दूसरी ग्रोथ रेट है और न्यू मेथड से ज़्यादा ग्रोथ रेट बताई गई है। दूसरा हमने देखा कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे कैसे कि ग्रोथ को जो है बढ़ा के दिखाया गया, बट एक्चुअल ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन ने डेफिनेटली इम्पैक्ट किया था, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। थर्ड हमने देखा जीडीपी बैक सीरीज डेटा में कि कैसे एनडीए गवर्नमेंट ने यूपीए गवर्नमेंट को बताया कि उनकी ग्रोथ कैसे कम थी एज पर द न्यू मेथडोलॉजी, और एंड विद इन 4 years दे हैव अचीव्ड मच मोर देन द यूपीए गवर्नमेंट, राइट। जो नेक्स्ट इशू है बच्चों, नेक्स्ट इशू है वो है इशू ऑफ शेल कंपनीज इन MCA 21। मैंने बताया कि एक रिपोजिटरी है, डेटाबेस है एक तरीके का, ओके। और शेल कंपनीज क्या हैं? बेसिकली शेल कंपनीज क्या हैं? दे आर रजिस्टर्ड ऑन पेपर, बट एक्चुअल ट्रांजैक्शन
एक्चुअल ट्रांजैक्शन आर नेग्लिजिबल, तो उनका भी डेटा होगा और वो MCA 21 के डेटाबेस में होंगे और उनका यूज कर रहे हैं हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में. ओके ओके, so here I will write in 2019 survey of NSSO, ये क्या कहता है? ये कहता है कि 16.4% ऑफ कंपनीज registered under MCA 21 are shell companies. ओके, तो जो भी डेटा आएगा वो फॉल्स होगा. ये एक तरीके का इशू रहा है. राइट, इशू रहा है. अच्छा, और इश्यूज क्या रहे हैं? MCA डेटाबेस हम, है ना, बहुत ही इसका हाइप क्रिएट किया गया MCA 21 का. तो इसके साथ और क्या जो है इशूज रहे हैं? एक तो हो गया कि शेल कंपनीज, है ना, इसके अंदर रजिस्टर्ड है. ओके, तो इसके लिए अदर इश्यूज क्या है? अदर इश्यूज MCA 21 के अदर इश्यूज क्या है? इश्यूज पहला, अदर इश्यूज में अगर हम देखें तो इसमें हम कहेंगे कि जो हमारा सेक्टोरल क्लासिफिकेशन है इकोनॉमी का, सेक्टोरल क्लासिफिकेशन अंडर MCA 21 is not in consonance with the classification under United Nations system of national accounting, that is UNSNA. okay, that is UNSNA. so UNSNA क्या है बच्चों? UNSNA that presently government of India calculate national income on the lines of UNSNA 2008 में. ठीक है, तो अभी जो हमारा नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है वो यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग के बेसिस पे होता है, और जो हमारा MCA 21 का जो डेटाबेस है वो इसके कॉन्सोनेंस में नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है. तो एक तरीके का एक इशू जो है ये MCA 21 के साथ बना हुआ है. अच्छा, दूसरा क्या इशू है? दूसरा ये है कि NSO is using MCA 21 data विदाउट क्रॉस वेरिफिकेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा इसमें, इतना ज़्यादा डेटा का रिपोजिटरी है कि उसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया ही नहीं जा सकता है. तो जो भी डेटा है उसी को हम प्रोसेस करते हैं. राइट, NSO उसी को प्रोसेस करती है. राइट, तो ये एक कंट्रोवर्सी और हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम, है ना, बहुत ही कंट्रोवर्सी. इट वाज वेरी मच पॉपुलर. राइट, देयर इज अ फेमस इकोनॉमिस्ट, ही इज नोन एज मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम. ओके, सुब्रमण्यम. So Arvind Subramaniam, right? He is well-known scholar. He submitted a research article. Okay, research article to Harvard University. Okay, क्या उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, he submitted, he was also former economic advisor, economic advisor of government of India. Okay, so he published a research article and he revealed that
between 2011, 12 to 2016, 17, right? There is economic growth of 4.5% only. But what Government of India official estimate that is 7% approximately, right? And that is what, as per Arvind Subramaniam, it is fake. It is fake data. Okay. So he submitted a research article to the Harvard University. Okay, that was again a controversy, right? So that is the thing over here. So we have mentioned controversies or issues related to the new methodology, that is the significant upward revision in growth rate. Second, demonetization. During the demonetization, the concept was different. GDP WACC series data. We have discussed the issue of cell companies in MCA 21, and Mr. Arvind Subramaniam, research article we have seen here. Okay. Next discussion would be, as per our plan, next discussion would be the positive aspect, right? The positive aspect of new methodology. So simple, very simple, few points. First one is it is predominantly based on United Nations system of national accounting. Okay, that is the convention of United Nations or IMF as well. Okay, so here we are following the same. So at least we are practicing the United Nations system of national accounting, which is globally uniform. Okay, second, if you see here, okay, I'm writing here the independent estimate of IMF and World Bank about India's economic growth comparable with estimates under न्यू मेथडोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि IMF और वर्ल्ड बैंक है ना, हमेशा जीडीपी एट मार्केट प्राइस को ही प्रिफर करते हैं, राइट? और इंडिया पहले बिफोर 2015 दे वेयर प्रिफरिंग टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो जो भी ये एस्टिमेट बताते थे IMF और वर्ल्ड बैंक, हम उसको फिर कैलकुलेट करने में हमें परेशानी होती थी, है ना? तो अब डायरेक्ट है ना, वॉट एवर दे एस्टिमेट दे विल बी गिविंग, whatever forecast they will be forecasting, that can be directly compared to the India's statistics. Okay, all right. Third point, there has been conceptual improvement. क्या आया conceptual improvement? राइट, जैसे कि बेसिक प्राइसेस पे हम कर रहे हैं, है ना? पहले एक्चुअल कास्ट फैक्टर कास्ट पे हम मानते थे, लेकिन फैक्टर कास्ट से ज़्यादा, है ना, फर्म ओनर का फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट हमें मतलब उसको देना पड़ता था, है ना? यस, तो इस बेसिक प्राइसेस में क्या है? प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूडेड है, अर्लियर नॉट इंक्लूडेड ना, नॉट
included. Okay, so conceptual improvement also took place. All right. Okay. Sample size. No, it also widened data sources, widened data sources, which increased sample size of data, sample size of data. Okay, and it led to cross verification of data, cross verification of data. डेटा ही नहीं होगा तो हम क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे? So they are the some positive points. Okay, they are the some positive points over here. So next part I would like to discuss here. I told you that okay. So far we have discussed a lot here. All right. So far, okay. So we have planned to discuss the items that included. We have done it. Okay. Problems in calculating national income, we have also done it. All right. We have done the revision done in the year. We have done the concept of basic prices. We have done the controversies related to the new methodology. Now, the only thing that remains is the brief history of national income accounting. Okay. So we will see here the brief history of, all right. So we will see here the brief history of national income accounting. Okay. Just a second. We will see here the brief history of national income accounting. Okay, so we will see a brief history of national income accounting. Okay, simple one. So for the introductory purpose, this is important. Okay, so we will see here that establishment of national income accounting was done by who? Done by Dada Bhai Nauroji. Okay, he estimated for the financial year of 1867-68. Okay, so first of all, Dada Bhai Nauroji, okay, he published a book that is called as the Poverty and Un-British Rule in India. Okay, he published a book. All right. He also gave the theory of drain of wealth. Okay, theory of drain of wealth. Okay. Again, now here after the establishment here. Okay, second part. Okay. In 1932, in 1931-32, right? All right. Professor V.K.R.V. Rao, Professor R.K.V. Rao, he gave first scientific estimate of national income. Okay, he utilized statistical techniques, scientific methods. Okay, all right. 1956, since 1956, okay, since 1956, what is happening? That Central Statistical Organization, CSO, has been estimating
has been estimating national income and related aggregates. Okay, it submits a report. Report is called as National Accounts Statistics. Okay, NAS simply. Okay, so CSO की बात है यहाँ पे. I already told you that CSO and NSSO has been merged to form the NSO, and NSO is working under the Ministry of MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation. All right. So currently, NSO measures national income through United Nations SNA method. Okay, which is a internationally accepted norm. Okay, so that is the history. I am talking about here. There is the history. Okay, all right. So simultaneously, I do not want to leave any stone unturned over here. So I would like to finish over here. But before finishing, there are some important terms that you need to remember here. Okay, there are some important terms that you need to remember. Okay, some important terms which you need to remember here. Okay, so we have learned over here. Just a second. We have learned over here. Okay, important terms. So far we have learned what is national income. Okay, we have learned what is national income. Okay, so national income is income earned by normal resident. They could be government or private individuals. Okay, and private means firm, any organization or individual, anybody. Okay, or individual. Second term is private income. Okay, second type of income is private income. So what is private income? That is income earned by private sector plus अनअर्नड इनकम. अनअर्नड ऐसी इनकम जो कि आपको मिलती नहीं है ऑफ प्राइवेट सेक्टर. ओके, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर पेमेंट्स. अनअर्नड इनकम का मतलब मिलती है बट that is not properly earned. That is given. That is unilateral payment. Okay, एग्जाम्पल ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल क्या है? गिफ्ट. ओके, गिफ्ट. तो ऐसी इनकम जो कि आदमी खुद कमाता है और ऐसी इनकम जो कि कमाता नहीं है बट उसको मिल जाती है. राइट, सो दैट इज अ प्राइवेट इनकम. थर्ड टर्म इज पर्सनल इनकम. ओके, पर्सनल इनकम. So personal income means private income minus income
earned but not received। क्या कोई ऐसी भी इनकम हो सकती है क्या जो कि आपको रिसीव ही नहीं हो रही है ना? सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस दिस वन, सेकेंड वी हैव डन द प्राइवेट इनकम, and third we have done the personal income. Okay, so income earned but not received, what does it mean? It means for example provident fund है ना, आपको मिलती नहीं है, बाद में मिलता है आपको, है ना? फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, है ना? फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम, यस, ओके। फॉर एग्जाम्पल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, okay, like that. Now income you have received, okay, but आप कितना खर्च करते हो ये इंपॉर्टेंट है। एक और कैलकुलेशन है, इसको बोलेंगे हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ओके। डिस्पोजेबल इनकम या सिंपल वर्ड में इसको बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम, ओके। डिस्पोजेबल इनकम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओके, डिस्पोजेबल इनकम इसका मतलब है कि इट इज टोटल इनकम which is available for use with the household during a financial year, ओके। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जिसको आप खर्च कर सकते हो बेसिकली, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों, इसका फॉर्मूला है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस, ठीक है। तो जो आप टैक्स दे देते हो उसको आप यूज नहीं कर सकते ना, उसको आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। और ये टैक्स कुछ भी हो सकता है, आपका हो सकता है पर्सनल इनकम टैक्स, आपका हो सकता है हाउस टैक्स, दैट गोज टू द गवर्नमेंट, ओके, वेरी गुड। एक लास्ट टर्म है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ओके, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ओके। So I will write here what is national disposable income? It is the total income available for a nation for final consumption, okay, for final consumption in a year, okay. Formula would be so NDI is equals to national income here, because it includes all the individual of the nation, okay. National income plus net indirect taxes, okay, indirect taxes that is also available with the government or nation, plus transfer payments from abroad, from abroad, okay, from abroad. That means gift and grants, whatever they receive, what the nation receive it as a whole, okay, nation receive it as a whole. So that is also available with the nation or with the government to utilize for the national purpose, okay. So that is the NDI includes national income, net indirect taxes, which is also
available with the government, okay, plus transfer payments from the abroad, okay. Transfer payments includes gift and grants, okay. I hope you liked this chapter, this video, right? And you must have seen my effort to make you understand. I have comprehensively covered everything, okay. And I have made the discussion as per the recent development as well, okay, by incorporating different data of the economic survey as well. I hope you like the video. Keep watching the video so that you will understand the basic concept of the economics. Thank you very much.